سب سے الگ ہے، سب سے جدا نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ اتوار کی رات پیش قدم کے ساتھ میں اقرا صدیق اور میں سہیل بٹ۔ سامعین، آج ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پیش قدم کا 200واں شمارہ ہے۔ دسمبر 2009 سے لے کر 26 اکتوبر 2013 تک 199 شمارے پیش قدم کے ذریعے آپ کی نظر ہو چکے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے پیار اور حوصلے کا نتیجہ ہے کہ پیش قدم کی ٹیم نے اب تک کا سفر بنا کسی رکاوٹ پورا کیا۔ پیش قدم کے پروگرام کا بنیادی مقصد عوامی جانکاری، تعمیر و ترقی اور سماجی برائیاں جیسے مسئلوں کو اجاگر کرنا اور آپ تک پہنچانا ہے۔ اس پروگرام کو تیار کرنے میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبۂ صحافت کے طالب علموں کے علاوہ کمیونٹی ممبرز کا بھی عمل و دخل اور تعاون رہتا ہے۔ سامعین، پروگرام کے 200ویں شمارے کے موقع پر ہم نے اپنی اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پیش قدم کے سابق ایڈیٹرز کو، جو ہمیں پیش قدم کے اب تک کے سفر کے بارے میں جانکاری دیں گے۔ جی ہاں، ہم نے جن مہمانوں کو اپنی اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، سب سے پہلے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں آپ سے۔ میرے دائیں سائڈ سے بیٹھے ہیں فیاض احمد نجار صاحب، ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھی بیٹھے ہیں یاسف ملا صاحب، اور بالکل سامنے بیٹھے ہیں اسحاق صاحب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یاسف ملا صاحب سے، جنہوں نے اس سفر کی شروعات کی تھی۔ یہ ایک تو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جرنلزم کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیش قدم ریڈیو کلب کے کمیونٹی ممبر بھی ہے۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شروعات میں جو پیش قدم یہ کیسا ہوتا تھا اور ان کی کیا ایکسپیرینسز ہے۔ یاسف ملا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں۔ سب سے پہلے میں پیش قدم کی پوری ٹیم کو اس خاص موقع پہ کانگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک ایکسپیرینس کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی تھنک زندگی کا سب سے اچھا دور اسٹوڈیو میں گزرا ہے میرا۔ کشمیر کے بہت اچھے اسکالرز سے، بہت اچھے ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اسٹوڈیو میں، جن میں خاص کے شمس سر، اطہر سر، کاظم الدین، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو بہت سارا زندگی کا ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جو کبھی آرڈنری انسان ہو کے میں کبھی بھی ذہن میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ تو وہ باتیں میں نے یہاں اسٹوڈیو میں سیکھی ہے۔ ڈگری ختم کرنے کے بعد جب میں فیلڈ میں گیا تو دیکھا یہاں تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو میں نے اسٹوڈیو میں کیا تھا بالکل، اور لگ رہا تھا تھوڑا سا ایک اسٹیپ فارورڈ ہوں، کیونکہ ایڈیٹنگ کی بات ہو، اسکرپٹ رائٹنگ کی بات ہو، یا کچھ بھی مطلب ہاؤ ٹو فارمولیٹ اسٹوری، پریکٹیکل ایکسپیرینسز، ایگزیکٹلی ایوری تھنگ، سب کچھ یہاں پہ سیکھ چکا تھا۔ تو وہاں پہ بہت زیادہ آسانی ہوئی کام کرنے کی، کچھ زیادہ اسٹرگل نہیں کرنا پڑا۔ بالکل۔ تو اب ہم بات کریں گے فیاض نجار صاحب سے، جو آپ کے جونیئر رہ چکے ہیں، جو کہ آئیے ان سے بات کریں گے، ان کے کیا ایکسپیرینسز ہیں۔ پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ 200 ایپیسوڈ پورے ہوئے۔ جہاں تک میرے ایکسپیرینس کا تعلق ہے، پہلے میں جو یاسف صاحب ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے سکھایا جیسے کہ نہ ایک ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے چلنا، انہوں نے مجھے ایسے ایڈیٹنگ سکھائی۔ تو بات رہی کہ ایکسپیرینسز، کچھ برے ایکسپیرینسز بھی رہے، کچھ اچھی چیزیں بھی سیکھی، اور اتنا کچھ سیکھا کہ جیسے کہ یاسف صاحب نے کہا کہ فیلڈ میں آئی گاٹ اے جاب، مجھے جاب ملا انڈین ایکسپریس میں۔ تو ایز اے فریشر وہاں گیا، میں کچھ نہیں تھا میرے ہاتھ، تو یہاں کی ایک سرٹیفکیٹ تھی میرے پاس۔ آپ کو میں یہ چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے، میں گیا وہاں پہ تو میں نے بولا کچھ ایکسپیرینس ہے؟ میں نے بولا ہاں تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے۔ میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس ہے ایکسپیرینس، ہمارے یہاں پہ ایک پروگرام ہوتا تھا کمیونٹی بیسڈ تھا، وہ وہاں پہ ایسے ریڈیو میگزین تھا وہ، تو بولا کچھ ہے؟ میں نے ڈاکیومنٹ دکھایا کہ پیش قدم کا یہ میرے پاس ہے، تو آئی گاٹ سلیکٹڈ، مجھے جاب ملا۔ جی اسحاق صاحب، ہم اپنے سامعین کو بتا دیں کہ آپ ابھی بھی پیش قدم کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے کیا ایکسپیرینس رہ چکے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں پیش قدم کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے 200 ایپیسوڈ پورے کیے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ آج میں ان دونوں ایڈیٹرز کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ خوش قسمتی سے میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا، شاید پھر زیادہ مشکل نہیں ہوئی کہ یہ جو ہیریڈیٹی ہے پروگرام بنانے کی، اس کو کیری آن کرنے میں۔ تو اب تک کا سفر بہت اچھا رہا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت سارے اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ آپ سب سے گفتگو جاری رہے گی، لیکن سب سے پہلے سنتے ہیں معروف براڈ کاسٹر ہمایوں کیسر سے کہ ان کا ہمارے پروگرام کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ کنسیپٹ اچھا اس سینس میں ہے کہ یہ
एक तो स्टूडेंट्स को मौका देता है कुछ करने का, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाती है, ऑन एयर आती है, फिर कुछ मामले भी टच करते हैं जो मामले पब्लिक के सामने आते हैं। और मेरे ख्याल में जब यूथ ही खुद ही प्रोग्राम कर रहा है, खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, एक डिफरेंट एंगल मिलता है इश्यूज को, जो हो सकता है सीजन ब्रॉडकास्टर से ना मिले, उसके एंगल थोड़े डिफरेंट होंगे, वो कुछ डिफरेंट सोचता होगा। एक ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि अगर यही एक तहरीक बन जाए, कम्युनिटी रेडियो अगर आप एक चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कल को आपको अपना मौका मिल जाए करने का, तो आपके पास एक किस्म का फोर्स तैयार है जो आपकी मदद करेगा। उम्मीद करते हैं ये जारी रहेगा, और मैं चाहूंगा ये भी इससे ज्यादा कि आपका अपना एफएम हो जहां से आपके स्टूडेंट्स खुद ब्रॉडकास्ट करें। जब आप किसी चीज को चेंज करने की कोशिश करते थे तो आपके दिमाग में क्या होता था और आप चेंज कैसे लाते थे नॉर्मली? जब पहली बार पेशकदम में हमने काम किया तो कुछ खास सेगमेंट्स हम बनाते थे, लेकिन जितना जितना पेशकदम आगे बढ़ता गया उतनी क्रिएटिविटी और उतने अच्छे सेगमेंट्स हम बनाते गए। को अच्छा फीडबैक मिलता है आपके ऑडियंस से, तब आप अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हो। तो ऐसे ही पेशकदम का ग्राफ तब से अभी तक बहुत ऊपर जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इंशाल्लाह ऐसा ही होता रहेगा पेशकदम। फयाज भाई, आप हमें ये बताइए कि जब आप बनाते थे और जब आप आज सुन रहे हैं तो क्या चेंज लग रही है आपको? तो जहाँ तक एपिसोड्स की बात करते हैं, पेशकदम की बात करते हैं, जब मैं यहाँ आया तो एक डिफरेंट दौर था। अभी जब है तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी और क्रिएटिविटी होती है। जो हमारे तक था कि हमने भी कुछ सेगमेंट्स इसमें ऐड किए, और लेकिन उस टाइम स्लॉट कुछ ज्यादा था, तो एक्सपेरिमेंट्स करने का ज्यादा ही मौका मिलता था। आप लोगों ने तो इसमें कुछ रेवोल्यूशन लाया। एक तो आपको टाइम स्लॉट बहुत कम मिला, सिर्फ एक ही बार हो 15 मिनट, और वो भी एक ही बार होता है, तो आपको एक्सपेरिमेंट्स करने का कम ही मौका, लेकिन आपने इसमें क्रिएटिविटी जो भर दी है, दैट इज ना, वो बहुत अप्रिशिएट करने की बात है। तो इस साहब से बात करेंगे, जो टाइम स्लॉट जो उसमें चेंज आए, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? पहले बहुत कंफ्यूज थे, मतलब कि आप कैसे मैनेज करें। फिर हमने मैनेज कर ही दिया कि हम कैसे अपने सेगमेंट्स का टाइम कम करें, और फिर भी हम अल्लाह ताला की फजल करम से अभी 4 से 5 सेगमेंट्स इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। जी, हम आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ ले आए और हमारे साथ अपने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस शेयर। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। सामीन, आपको बता दें कि पेशकदम एक कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम है जो हर इतवार 9 बजे रात FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर नशर होता है। वादी कश्मीर में ये अपनी नौयत का पहला कम्युनिटी प्रोग्राम है और ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में कायम है। जी हाँ, दिसंबर 2009 को पेशकदम का पहला शुमारा नशर हुआ, जो कि यहाँ के वाइस चांसलर और शोबे सहाफत की काविशों का नतीजा है। आइए सुनते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अब्दुर्रशीद त्राक का क्या पैगाम है पेशकदम के नाम। सबसे पहले मैं आप सबको जो इसके साथ मुंसलिक रहे हैं, वाबस्तगी जिनकी भी रही है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे कम्युनिटी के यहाँ लोग हैं, जिन्होंने आज तक इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। ये आसान बात नहीं है 4 साल में फिर 200 एपिसोड्स कंप्लीट करना सक्सेसफुली। तो मुझे लगता है ये काबिल तारीफ एक्टिविटी है सबकी, और एक अक्कासी करता है उन सब लोगों के इंटरेस्ट की जो उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कर ली है। मैं बीच बीच में ये इनके प्रोग्राम्स भी देख रहा था, जो वॉच कर रहा था कैसे ये प्रोग्राम बनाते हैं, उनके टाइटल क्या है। अगर हम कहते हैं ये कम्युनिटी रिलेटेड प्रोग्राम्स है, वाकई में ऐसे प्रोग्राम है जब मैंने देखा एग्रीकल्चर के मुतालिक, एजुकेशन के मुतालिक थे, और उसके बाद सोशल एवेलेंस, स्पेशली हमारा जो ये ड्रग एडिक्शन का था। काबिल तारीफ ये है कि आपने उस बच्चे को लाया था जो पहले इसका शिकार था ड्रग एडिक्शन का, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मैंने शुरुआत कैसी कर ली, इसके मुझे असरात कैसे हैं। नेक दुआएं आप सब लोगों के साथ है, और मैं उम्मीद रखूंगा कि जिस सीरियसनेस से आज तक आपने इसको चलाया आगे भी चलाते रहेंगे। ये मुझे लगता है यूनिवर्सिटी के लिए एक परमानेंट एक्टिविटी रहेगी, बल्कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो फैसिलिटीज में अगर वो जरूरत है वो भी करते रहेंगे। सामीन, पेशकदम के नाम आपके खतूत, राय और रद्द-अमल हमें मुसलसल इरसाल हो, लेकिन आज हम खुद आप तक पहुंचकर प्रोग्राम के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं।
कम्युनिटी रेडियो का जहाँ तक सवाल है, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। हम सभी कम्युनिटी जो जितने भी मेंबर्स इसमें हैं, इससे जो हमारे कम्युनिटी में जो कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हुकाम तक पहुँचने में हमारी मदद करता है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये सब करता है। कम्युनिटी रेडियो से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को आया, लेकिन प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले सुनते हैं शोबे सहाफत की सरबराह मोनिसा कादरी का प्रोग्राम से मुतल्लिक क्या कहना है। ये काफ़ी मसरत की बात है कि हमारे पेश कदम के 200 एपिसोड्स पूरे हुए हैं और इस दौरान हमने मुख्तलिफ इशूज़ पे बात, जिनमें अवंतीपोरा के मसाइल जो हैं उन पे ज़्यादा जोर हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अवंतीपोरा की और काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, और ये भी कि पेश कदम जवान नस्ल के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म साबित हुआ। और इसलिए पेश कदम की पूरी टीम, जिनमें शम्स इमरान, सना बेग, शबीर जमान, जानिसार कुरैशी, रूहीला हसन और हमारे पहले बैच से लेके अब तक के टैलेंटेड और मेहनती स्टूडेंट्स शामिल हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे ज्यादा हमारे सुनने वालों का शुक्रिया, जिन्होंने हमारा साथ हमेशा दिया। अब चूंकि 200 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, उसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि हम यहीं पे रुक जाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिन इश्यूज, जिन मुद्दों पे हमने आज तक बात नहीं की या कम बात की, उनको हम ज्यादा अच्छे से डील कर पाएं, उनको ज्यादा हाईलाइट कर पाएं। और इसके लिए मैं चाहूंगी जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनका एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, एक्टिव रोल हो, हमें ये बताने के लिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो हमसे क्या तवक्को रखते हैं। और मजीद जो अवंतीपोरा के कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगी कि वो पेश कदम के साथ, पेश कदम की टीम में हमेशा शामिल रहें और अपने इश्यूज को खुद ही आवाज दें और लोगों तक पहुंचाएं। आइए जानते हैं रूहीला हसन से, जिनकी सरबराही के वक्त इस रेडियो प्रोग्राम का इनकाद हुआ था। ये पानू साउथ एशिया की मदद से हम लोगों ने पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो थ्रू आउट वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में कम्युनिटी रेडियो को प्रमोट और सपोर्ट कर रही है। सिंस यहाँ पे एक आर्मी एयरबेस विद इन 10 किलोमीटर्स के एरिया में आती है, इसलिए रेडियो स्टेशन खोलना यहाँ पॉसिबल नहीं था। देन इट वाज डिसाइडेड कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एटलीस्ट एक कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम बनाया जाए। उस टाइम प्रोफेसर सिद्दीक वाहिद वाज द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो दो इश्यूज थे, मेनली जो प्रोडक्शन का था वो ट्रांसमिशन का। प्रोडक्शन के लिए यूनिवर्सिटी ने खुद इन्वेस्ट करके यहाँ पे एक साउंड प्रूफ स्टूडियो बनाया, जिसमें पैनोस की मदद से इक्विपमेंट्स हमने लाए। पहले साल में हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स की, ट्रेन कम्युनिटी मेंबर्स को ट्रेन किया, डिफरेंट स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, प्लस जो फैकल्टी मेंबर्स है यहाँ को विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट डिफरेंट जगहों पे उन्होंने ट्रेनिंग्स की। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ रेडियो कश्मीर के साथ, जो ट्रांसमिशन में जिन्होंने हमको सपोर्ट दिया। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा 200 एपिसोड्स पूरे हो गए, यानी कि 2009 से हम लोगों ने 200 एपिसोड्स पूरे किए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत आगे जाएगा, हर एस्पेक्ट में ये बहुत इम्प्रूव करेगा। इंशाल्लाह बहुत वो वक्त भी आएगा जब हम इसके 1000 एपिसोड्स पूरे करेंगे। आखिर में फिर आपको याद दिला दें कि ये पेश कदम का 200वां शुमारा था। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। इसके साथ ही पेश कदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इकरा सिद्दीक, सुहेल भट्ट और प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ